para 3 plus 1. डॉक्टर सुरैया दोबारा रिपीट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट की है। जी my patient named Nadia, she's 32 years old, para 3 plus 0 with a complaint of pain in lower abdomen since 1 year. ठीक है मैडम मैं स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। मैम तो ये बस आपका टोटल सिनेरियो है? यस मैम ये सिनेरियो। ओके ठीक है, बेटा शुरू करें। Madam, introducing myself and taking the patient's introduction and confirming the identity of the patient. With the consent of the patient, I will take the missing information. She is married since long 10 years. And what is her educational status and job? She is para 3 plus 0. What is the mode of delivery of the babies? This is SVD 3 alive plus healthy. What is the age of the last child born? What is her last menstrual period? It is a week ago. Then, madam, I will proceed towards the complaint of patient, which is lower abdominal pain for 1 year. Madam, I will first of all quantify or ask about the nature of the pain, how much her quality of life has been disturbed, whether its site it is located in the lower abdomen, whether it is constant, intermittent, what is the intensity of the patient of the pain, it is severe, is there any radiation, what is the aggravating factor, and what is the relieving factor. It is relieved by medicine. And then I will ask that does it have any relationship with her menses, whether it is a severe premenstrual and during the menstrual cycle and relieved after that. Then I will ask about the investigation and treatment up till now. My patient has taken OCPs. Initially she used NSAIDs and now she has used oral contraceptive pills. Then after this I will ask about her gynae history, her age of menarche, which was 13 years, about the cycle length. It was a regular cycle 7.28, whether there is heavy menstrual bleeding, intermenstrual bleeding, and post-coital bleeding, it is all negative. And also I will ask about the coital history. My patient is having a severe dyspareunia and her coitus frequency has also decreased. Then I will ask about the contraception. Has she ever used, patient used OCPs for contraception? Then any PID, pelvic pain, and any surgical intervention, gynae ops, other surgeries in her life are negative. And then after this any pap smear, she has done one pap smear, that is normal. Madam, in pelvic pain, the differentials, I will ask question, is she having any increased frequency of urination, burning micturition, or any constipation, or any vaginal discharge? That is negative. Then I will ask about her and her family history of diabetes, hypertension, endometriosis history in her family, mother, sister, or any history of ovarian, colonic, or breast malignancy in her family. Then surgical I have asked. Then after this I will ask allergy and addictions and support of the patient. Ma'am, I'm done with my history. Now I will proceed towards the examination of the patient. Madam, I will ask height and weight to calculate the BMI of my patient. एक मिनट, चलिए ठीक है, फिर आप कंप्लीट कर लें, फिर इस पे बात करते हैं। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें बेटा। Madam, height and weight of my patient to calculate the BMI, that is 28 kg per meter square. Madam, then about the vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate, that is normal. General physical examination, jaundice, anemia, cyanosis, lymphadenopathy, and thyroid, those are normal. Then madam, systemic examination, breast, cardiopulmonary examination, normal. Then with the consent of the patient, in the presence of chaperone, abdominal examination, that is soft, but on depalpation it is in the left side, it is tender. Then PS per speculum examination, cervix normal looking. On abdominal examination सिर्फ one sided tenderness है इसकी, left side पे madam, depalpation पे tender, left side पे, ठीक है। And then ma'am, per speculum examination, cervix normal looking. There is no discharge. If there were discharge, I would take the high vaginal swab. There is no discharge, and vaginal walls are normal. Then comes the bimanual examination. Uterus is of normal size, but it is tender, and it is not fixed. And in adnexa, right adnexa is clear. In the left Not free का क्या मतलब है? Not free का क्या मतलब है? Ma'am, it is not fixed. I mean fixed. It seems normal, but it is only tender. And madam, left mobile from side to side, जिसको हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, mobile from side to side. Yes ma'am, mobile from side to side. And right adnexa is normal, but the left adnexa is tender. And this is examination.
Then, madam, investigation, should I proceed? जी जी Madam, first of all, baseline investigation, blood group, patient already knows, CBC, HB, platelet, TLC, virology, Hep B, Hep C, HIV, and then urine DR, albumin, sugar, per cell nitrate, and in specific investigation, blood sugar of the patient as a baseline investigation, in a specific transvaginal sonography of the patient. ओके एक मिनट मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट बेटा आपको रोकूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि तो आपका जो आपने डिफरेंशियल बहुत सारे बनाए, इसको हम थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप ही डिस्कस कर लेते हैं। वो इसलिए कि फिर जो है वो चीजें एक डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो दरमियान में, ठीक है। तो सो फार बाय योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपका डिफरेंशियल क्या बना? मैडम, मेरा जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो तो एंडोमेट्रोसिस है, और डिफरेंशियल्स में मैडम मेरा आई एक्सक्लूडेड, मतलब इसको यूटीआई नहीं अभी था। आपने इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कराई, हम सिर्फ हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन पे बात मैडम, कर it could be any benign and malignant mass of the mass. It can be any tube mass, and madam, it can be any appendicitis in differentials. But my patient has no fever, no vomiting, and madam, it can be अपेंडिक्स तो अमूमन राइट साइड पे होती है ज्यादातर। right side पे। Yes, ma'am. हाँ, तो ये लेफ्ट किडनी एक्सल इसकी टेंडरनेस है और सारा Tube मसला mass. इस लेफ्ट साइड पे। Tube mass, it can be any benign and malignant condition of the ovary, tube mass, and PID, PID, and in reproductive age, ectopic pregnancy. She is having this problem of pain for last how many? Madam, for 1 year is lower abdominal pain, Okay, and for it 1 has year, ठीक है। increased. तो ये ऑलमोस्ट एक क्रॉनिक पेल्विक पेन वाली सिचुएशन हो गई ना। Yes, और ma'am. इसमें कोई उसको डिस्पेरूनिया की हिस्ट्री नहीं है? है और मैडम, है, डिस्पेरूनिया की है। अच्छा, डिस्पेरूनिया का मेरा ख्याल है आपने कहा था कि नो डिस्पेरूनिया, ठीक है। चलो, डिस्पेरूनिया की हिस्ट्री पॉजिटिव है, डिस्मेनोरिया भी उसको है, लेकिन डिस्यूरिया या कुछ और ऐसा बावल डिस्टर्बेंस वो कुछ नहीं है, एक्सेप्ट दैट पॉजिटिव सिम्टम्स शी इज हैविंग इज पॉजिटिव डिस्पेरूनिया एंड डिस्मेनोरिया, ऐसा ही है? यस मैम। अब जो डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री है, टू डिमार्केट इट फ्रॉम द अदर कॉजेस ऑफ डिस्मेनोरिया, आपको इसको थोड़ा सा जरा इसमें इसकी मतलब रिलेशन विद मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपने बता दिया, लेकिन जो रिलेशन विद मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ पेन और भी बहुत सारी रीजंस में हो सकती है, पीआईडी में। तो इसमें इसकी डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होंगी इफ यू थिंक दैट दिस इज ड्यू टू एंडोमेट्रोसिस? तो उसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में इसको जरा क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी जस्ट बाय फ्यू क्वेश्चंस, बट बेसिकली यू हैव टू, आपने हिस्ट्री जो आपको लगा कि ये इसका डायग्नोसिस है उसके बारे में हम मजीद पॉजिटिव इंटेरोगेशन इसमें करते हो, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन तक पता चल गया ये फाइब्रॉइड भी नहीं है, ये कोई मैस भी नहीं है, और इसमें और कोई ऐसी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं लगती, कोई लिमिटेड मोबिलिटी नहीं है, तो एंडोमेट्रोसिस वाली एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। और उसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम द अदर कॉजेज ऑफ डिस्मेनोरिया वो क्या होंगे? मैडम, इसका डिस्मेनोरिया प्रीमेंस्ट्रुअल, पहले तो ये बताएं कि डिस्मेनोरिया की कॉजेज क्या क्या होती हैं? मैडम, एक तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है जो विद इन 1-2 डेज रिलीव हो जाता है। दूसरा इसकी एडिनोमियोसिस हो सकता है मैडम, एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, और इसके अलावा कोई पीआईडी हो सकता है। एंडोमेट्रोसिस का पेन मैडम प्री मेंस्ट्रुअल जो है स्टार्ट हो जाता है और मेंसेस में वर्स होता जाता है, और मेंसेस के बाद ये रिलीव होना शुरू हो एंडोमेट्रोसिस जाता है। का जो पेन है वो क्या प्री मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाएगा? यस मैम, प्री मेंस्ट्रुअल भी होता है और मेंसेस से बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, उसके बाद बेटर हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ डिस्मेनोरिया को देखें तो ज़ाहिर है टॉपिक साइट्स पे जितनी एंडोमेट्रियम है वो उसने ब्लीड करना है, वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करना है, या अगर वो कहीं पे कंटेन्ड एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स हैं लाइक इन एंडोमेट्रियोमा या एडिनोमाइसिस भी तो एक फॉर्म है उसकी एंडोमेट्रोसिस की, तो वो जगह उस वहां पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सो डिस्टेंशन पेन वो वाली चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें दिस विल वर्सन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये परसिस्ट करती है इवन आफ्टर व्हेन द पीरियड्स आर स्टॉप्ड, ओके। और इसलिए जो है वो
ये एक बड़ी क्लियरली डिफरेंशिएटिंग फीचर होती है, क्योंकि समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया फ्रॉम द अदर कॉजेज। जैसे पीआईडी में हो सकता है, या एडिनोमायोसिस अगर माइल्ड फॉर्म में हो, जाहिर है आपको अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा, बाज दफा साइज इतना नहीं बड़ा हुआ होता यूट्रस का। या फिर अगर कोई सुपरफिशियल एंडोमेट्रोसिस है, उसमें आपको कुछ भी क्लिनिकली पता नहीं चल रहा होता, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन ये है कि इसमें जो आपकी डिमार्केशन है वो दैट इज द टिपिकल टाइप ऑफ पेन, उसमें उसका जो इसका जो कोरिलेशन है एग्जैक्टली विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें सिर्फ 2-3 सवाल पूछते हैं कि डज इट वर्सन विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और इट डिक्रीजेस 1 to 2 days आफ्टर द पीरियड्स, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ पीरियड्स, जो स्पेस्मोटिक डिस्मेनोरिया में होता है, तो जो प्राइमरी बेसिकली डिस्मेनोरिया में है। तो ये वाली एक बहुत क्लियरली इसकी फीचर होगी। और पीआईडी के तो जाहिर है अपने कुछ फीचर्स हैं जो इस पेशेंट में मौजूद नहीं है, ना एग्जामिनेशन पे ना उसके सिम्टम्स पे। तो इसलिए जो है वो एंडोमेट्रोसिस का अगर आपने प्रोविजनल बनाया है तो उसकी बहुत ज्यादा उसमें आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए, दो इट इज अ केस ऑफ एक्सटेंडेड टोक्स। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई योर डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड हाउ यू विल कंफर्म इट। जाहिर कंफर्मेशन क्राइटेरिया फिर आगे मजीद आ जाता है, तो वो चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये बाकी जो आपने सिर्फ कहा कि लेफ्ट एट नेक्सा में टेंडरनेस है, एंड इफ यू आर नॉट, यू हैव नॉट पल्पेटेड एनी मैस और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी भी नहीं है, व्हाई इट इज यूनिलैटरल? मैडम फुलनेस थी और टेंडरनेस थी, फुलनेस और टेंडरनेस। यस मैम, यानी आपको क्लियरली मैस नहीं लगा लेकिन आपको फुलनेस लगी, फुलनेस लगी। यानी फुलनेस है विच मे बी सजेस्टिव ऑफ सम ओवेरियन पैथोलॉजी, ऐसा ही है? यस मैम। अच्छा, उसमें आप फिर कह सकते हो कि विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सम ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। फुलनेस की अदरवाइज और कोई वजह नहीं होती, ज़ाहिर है यूनिलैटरल कोई फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो सकती ना, वो तो यूनिफॉर्मली ही होती है, तो उसको आप फिर उसमें पॉसिबिलिटी वाली बात करोगे, ठीक है। तो इसमें इसमें जो आपका डिफरेंशियल जो पेन का बनेगा वो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन, वो फिर आपका पीआईडी का बनेगा। एक टॉपिक इज वेरी रेयर, एक साल से तो एक टॉपिक का चलना बहुत बहुत रेयर है। और इसमें बाकी एडिनोमायोसिस वाली चीज हो सकती है और सम फाइब्रोइड, जो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है जो आपको अलहदा से फील नहीं हो रहा होता, बट यू सेड दैट द यूट्रस इज ऑफ नॉर्मल साइज, जबकि वो पैरा 3 भी है। तो ये वाले इसके क्लियरली कुछ डायग्नोसिस बन जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हाउ यू विल कंफर्म द केस, या इसमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए फॉर कंफर्मेशन ऑफ योर डायग्नोसिस वो क्या होंगी अपार्ट फ्रॉम द बेसलाइन? मैडम पेशेंट के जो है ना अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, यूट्रस इट्स साइज, and is there any we will ask that any myometrial pathology, and young, so obviously endometrial thickness we will not see. And beside this ovarian sizes, madam, the right ovary size was normal, but the left ovary size there was 6 centimeter cyst in the left ovary, and it was a homogeneous cause suggesting of endometrioma, and small amount of madam free fluid was in the pouch of Douglas. ठीक है। So now your diagnosis is? Madam, most probably it is endometriosis. एंडोमेट्रोमा, ठीक है। ये मेरा ख्याल है किसी का माइक शायद म्यूट होने वाला होगा, ये कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस है। तो ये जो है वो आपका एंडोमेट्रोसिस, ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन। कंफर्मेटरी मैडम लेप्रोस्कोपी पे और हिस्टोपैथोलॉजी पे होगी कंफर्मेटरी, ठीक है। तो इसमें जो है वो अब आपकी बेसिकली ये तो हो गई जो कि इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन आप कुछ करना चाहोगे? मैम बीटा एचसीजी एंड CA 125 इसके अवेटेड है। बीटा एचसीजी क्यों? मैडम इसकी पेशेंट की एज यंग है, और इसके अलावा जो है इसमें कोई ओवेरियन पैथोलॉजी वगैरह को कोई एक्सक्लूड करने के लिए, एंड CA 125 भी मैडम सेंड किया हुआ है। CA 125 क्यों? 6 मैडम सेंटीमीटर होमोजेनियस सिस्ट है ना?
Yes, ma'am. Homogeneous with internal echoes. जो हम अल्ट्रासाउंड पे पूछ सकते थे टू फर्दर सॉर्ट आउट द B बेसिकली rule, M rule. हाँ Madam, B rule and M rule. मतलब आपने इंफॉर्मेशन उससे क्या गेन करनी है? Madam, whether it is unilateral, bilateral, or is there वो तो any आपको पता चल aside गया यूनिलैटरल है, unilateral है. ठीक है। And internal echoes, madam, any papillary projections, any solid areas, any ascites, madam ये सारी चीजें पूछेंगे. और Mets, नेट्स मैडम बी रूल एम रूल कोई ascites नहीं है, यूनिलेटरल है, ये सारी. ठीक है। इसमें सिस्ट वॉल थिकनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, Okay. सिस्ट वॉल थिकनेस। बट व्हाट वाज द ओवरऑल रिमार्क ऑफ इट? क्योंकि अगर होमोजीनियस है, हेट्रोजेनियस हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एंडोमेट्रोसिस इज इंक्रीज्ड मोर। तो इसमें सिस्ट वॉल थिकनेस पे कोई कमेंट नहीं था? No, ma'am. No, ma'am. Small अच्छा, amount of free fluid in the pouch of Douglas वो scar. तो नॉर्मली होता है। अप टू 50 cc ऑफ फ्री फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड स्पेशली आफ्टर द ओवुलेशन। इसलिए पेशेंट का LMP बताना बड़ा जरूरी होता है जब ठीक आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पे कमेंट कर रहे होते हैं। तो ठीक है. उसमें LMP का कि ये इस फेज ऑफ साइकिल में है, उससे फिर चीजों को नॉर्मल या को एबनॉर्मल से डिमार्केट करना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, Okay. अब इसमें ये यहाँ तक आपका ये डायग्नोसिस आपने सो फार यू हैव मेड द डायग्नोसिस टू बी ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, Yes, ठीक है, ma'am. जो कि एक सब टाइप है एंडोमेट्रोसिस की। अब Yes, इसके ma'am. बाद आगे आप क्या करोगे? Madam, on the basis of my Further. ST examination and labs, my diagnosis is most probable endometriosis. I will counsel the patient about the diagnosis that it is a benign condition, and I will do a multidisciplinary team approach, a senior gynecologist, and for pre-op for pre-op ahead, I will include my anesthetist, and for histopathology report, Have you talked to the patient? Yes, ma'am. अभी आ रही हूँ उसके ऊपर. I will counsel the patient about its सबसे diagnosis. पहले आप किसी भी और से बात करने से पहले जब पेशेंट आपके पास OPD में आता है तो उस वक्त आप सबसे पहले अपनी टीम को रेडी नहीं करते। आप सबसे पहले पेशेंट के साथ बात करते हैं, पेशेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, पेशेंट को उसका डायग्नोसिस बताते हैं, उसको मैनेजमेंट ऑप्शंस बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, एंड देन फाइनली यू टेक द कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट व्हाट एवर शी ऑप्ट फॉर। उसके Yes, बाद ma'am. बाकी टीम की तैयारी की जरूरत होती है। हो सकता है पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दे कि नहीं मुझे तो अभी पेन किलर दे, मैंने सर्जरी नहीं करानी। तो इसको हमेशा स्टेप टू स्टेप लेके चलना चाहिए आफ्टर यू हैव मेड द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। Yes, तो ma'am. फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होती है पेशेंट के साथ, एंड दिस इज व्हाट यू डू ऑन डे टू डे बेसिस। आप ऐसे Yes, ही कर ma'am. लेते हैं, पेशेंट के साथ आप बात करते हैं। पेशेंट ज्यादातर तो एडमिटेड नहीं होते जब तक उनका सर्जरी प्लान नहीं हम कर लेते या सारी चीजें हम प्रिपेयर नहीं कर लेते। तो Okay. इसलिए आप एक काउंसलिंग उसमें करोगे। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक्सटेंडेड टॉक्स का भी। तो इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली इसमें कवर हो जाती हैं। सो व्हाट कंपोनेंट यू विल कवर इन काउंसलिंग? Madam, I will counsel the patient about the diagnosis that this is a benign nature of endometriotic cyst, and my aim will be, my concerns will be, my patient has no fertility concerns. My aim will be symptomatic relief patient of the patient, and to prevent the complication of the cyst, that is cyst rupture or torsion, and of course preservation of the ovarian function of the patient. I'll give her option. My patient has tried medical treatment in the form of painkillers and COCPs since long. So as her cyst size is 6 centimeter and my patient has got pain, so my plan will be a surgical intervention with the For how much conservation of time? the For how much time she has tried the medical treatment in the Madam, form for of painkillers or the other treatments? Madam, 1 year she has tried, and whenever Okay. she had contraception also she used to use COCP, and continuous she has used COCP. Okay. ठीक है, चलें आगे चलें। Madam, my plan will be surgery of the laparoscopic cystectomy of the patient. Before this, I will do pre-op assessment of the patient and WHO safe surgery checklist. Now in my MDT, the anesthetist will also come, or histopathology will be sent to the lab, and I will do all the pre-ops of the patient
and when we will open it, we will stage it on laparoscopically. We will stage it that whether it is involving what is the size of endometrioma and involvement of the madam ovaries and pouch of Douglas. We will see the and the ASRM classification will decide on the extent of the lesion, whether superficial, deep, and whether it is mild, moderate, minimal, mild, moderate, or severe. In minimal, madam, 1 to 5 score is there. In mild, it is 6 to from 6 to 15, and moderate 15 to 40, and greater than 40 will be severe. As the size of the endometrioma of my patient is 6 centimeter, so up to 1 to 3 it is 8, and 6 centimeter score will be 40. Further, we will see also peritoneum cavity, and my aim will be to remove the excision of the cyst along with its wall, and inspect all the viscera, uterus, ovary, pouch of Douglas, and peritoneum. And I will send it for histopathology, and final diagnosis will be on histopathology. Okay. अब suppose when you go for the laparoscopy, अब laparoscopy से पहले जो consent taking होती है वो भी बड़ी important होती है. And what is that specific consent taking component? Madam, I will describe the whole procedure to the patient, and with I will give her fertility options, medical she has tried. वो And तो उसका for her, fertility option से कुछ लेना देना भी नहीं है. She has already completed her family. But what Yes, are very- the specific points to be covered in consent taking for Madam, the it is a very huge. It is a endometriosis. Maybe there are a lot of adhesion, and it may be converted into laparotomy. And it is a huge cyst. She may lose her ovary. And I also counsel her about that recurrence in conservative surgery. 30% is recurrence. And post-op, I will, as she has no fertility concern, I can give her COCPs or Muller support, so that the recurrence may not occur, and she may get symptomatic relief. But I'll counsel her that in conservative surgery, 30% chances of recurrence are there. Okay. And even the pain may also come out. And definitive surgery is, of course, that is bilateral removal of the ovaries. But my patient is a young patient. Her age is 32 years. So for her, we can give her on post-surgery COCPs or hormonal support we can give her. But there is one more thing to be covered in consent, and that is because you don't know the extent of disease. Because apparently it seems to be an isolated cyst formation in the left ovary. Okay. But what is the actual extent that will be basically revealed on that at the time of laparoscopy? Okay. So you have taken the need for laparotomy, but what if it appears to be a case of stage 4, when there are a lot of adhesions and the pouch of Douglas is obliterated, and suppose during the surgical process there is some injury to the viscerals, like Yes. gut and the gut, bladder or rectum. Usually तो rectum ही involve होता है सबसे ज्यादा, जो कि posterior to vagina है, और वहीं पे rectovaginal space में ही ज्यादा adhesions और जो ectopic endometriotic spots हैं वो वहां पे होने के chances होते हैं. तकरीबन ये 90% तक जो है इसमें वहीं पे होता है. So there is a risk of injury to the adjacent viscera, जिसके लिए आप उसको बताओगे risk of injury to the viscera. Okay. यानी जो नेबरिंग स्ट्रक्चर हैं उसका वो आप बताओगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स. Okay. तो क्योंकि सपोज देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपेंस एंड यू हैव टू एंड अप एट कोलोस्टमी, एक्सीडेंटली जो रेक्टम है वो परफोरेट हो जाता है ड्यूरिंग दिस डिसेक्शन प्रोसेस, तो उसमें तो आपने पहले से उसको नहीं बताया हुआ. दिस माइट एंड अप इन लिटिगेशन, कि हमें तो ये नहीं बताया हुआ था, वरना शायद हम सर्जरी ही ना कराते. तो इन चीजों को भी कवर करना कंसेंट में बहुत शामिल होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी हैं वो आप जरूर मरीज को बताते हैं, उसके फायदे उसके नुकसान. अपार्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, तो उसको आपने कवर करना है. अब देखो, ये तो है एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के जिसमें आपने लेप्रोस्कोपी से किया. लेप्रोस्कोपी एक आइडियल प्रोसीजर होता है फॉर एंडोमेट्रोटिक जो इसकी है सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक स्किल्स या लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं होता. एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है इसमें, इस पे भी डिपेंड करता है, स्किल्स पे भी डिपेंड करता है. तो अगर अवेलेबल हो
तो लेप्रोस्कोपी इज एन आइडियल प्रोसीजर। अदरवाइज आप लेप्रोटमी से तो करते ही करते हैं, और लेप्रोस्कोपी से इसलिए आइडियल है कि इसमें आप अंडर हाई मैग्निफिकेशन चीजों को देख रहे होते हैं। So the fine dissection and adhesiolysis becomes much more easy as compared to the routine laparotomy procedure. But suppose you on laparoscopy या laparotomy whatever, हम सर्जरी की बात करेंगे कि at the time of surgery you see that there is a condition of frozen pelvis. एंडोमेट्रोमा जो है वो उसका सिर्फ आपको कोई 3-4 सेंटीमीटर एरिया, ब्लूइश एरिया आपको विजिबल है, nothing else is visible. And there are dense adhesions between the gut, omentum and the uterus. और उसके साथ ovaries are buried under adhesions. Pouch of Douglas is totally obliterated. Yes, ma'am. उस सूरत में आप क्या करोगे? मैम मैं कॉल फॉर हेल्प करूंगी, अपनी सीओसी को कॉल करूंगी, कंसल्टेंट ऑन कॉल को, और सर्जिकल इनपुट उसमें डालूंगी। आपने उसको पहले से ऑन बोर्ड लिया हुआ है? यस मैम, लिया हुआ है मैम। एमडीटी में हमारा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इंक्लूड था, और मैम मैं जीएस का इनपुट करूंगी, जनरल सर्जरी का इनपुट करूंगी। मैम कैन आई आंसर? अच्छा ठीक है। व्हाट एल्स कैन बी डन? सपोज आपको मैम कैन आई आंसर? जी जी मैम इस कंडीशन में हम जो है जैसे आपने कहा कि ये सीवियर स्टेज में चली गई, तो इसमें जो है हम जस्ट स्टेज करके, क्योंकि हमने पेशेंट से एक्सटेंसिव सर्जरी की कंसेंट नहीं ली हुई थी, तो हम सेकेंडरी सर्जरी प्लान करेंगे विद प्लान इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ठीक है। दिस इज वन थिंग, ठीक है, कि आप इसको आपने ये किया। आप बेसिकली इसमें जो सिचुएशन इस तरह की जो होती है, जिसमें अगर सर्जन भी आए, सपोज सर्जन भी आता है, एडहेजियोलाइसिस इस तरह की, जिसमें बिल्कुल, क्योंकि देखो जो इस तरह की मैडम एक बात आंसर करो, एक बात। हाँ जी मैडम अगर पेशेंट इनफर्टाइल है, उसकी यंग एज है, ये सीवियर है, तो मैं अगर पॉसिबल है तो मैं लेपेंडाई करके ना, उसकी अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, सेल्फ इंजेक्टमी करके आगे उसको आईपुट बेटा के आपको लिए ट्यूब भी नजर नहीं आ रही, ऐसे केस में आपको ट्यूब भी नजर नहीं आ रही। ये तो आप तब करोगे ना जब आपको कुछ नजर आ रहा होगा। फ्रोजन पेल्विस का मतलब है कि ऑल द स्ट्रक्चर्स आर बरीड अंडर adhesions except that 3-4 सेंटीमीटर ऑफ ब्लूइश cyst is visible, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, ज्यादातर आप जब खोलते हैं जिनमें बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास बने हुए होते हैं, उनमें अमूमन सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि एंडोमेट्रोटिक सिस्ट आपको आराम से खुली बिल्कुल क्लियर कट नजर आ जाए और आप उसको निकाल के न्यूक्लिएट करके तो बाहर आ जाए। अमूमन ऐसी आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। यूजुअली कंडीशन यही होती है कि लॉट ऑफ एडहेजन, उन एडहेजन्स की इंटेंसिटी फर्क हो सकती है फ्रॉम केस टू केस। But we are talking about a patient who has dense adhesions all around the uterus, ovaries, tubes, and everything is buried under adhesion. Omentum, gut, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और उसमें सिर्फ आपको ब्लूइश कलर की जो सिस्ट है उसका 3-4 सेंटीमीटर is visible at one pole, ठीक है। सिस्टेक्टमी करके बायोप्सी ले लेते हैं मैडम। बात वही है, मैम बायोप्सी लेके क्लोज करेंगे। लिए आपको एरिया चाहिए, आप कैसे सिस्टेक्टमी करोगे? क्योंकि उसमें और खास तौर पे इसमें इन केसेस में ऐसा होता है कि जो पाउच ऑफ डगलस वाली जो हैं एडहेजन्स होती हैं, वो इस तरह की होती हैं कि अगर आप गट को उससे सेपरेट करने की कोशिश करते हो यूट्रस को, बिकॉज देन गट ऑलमोस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट यूट्रन, पोस्टीरियर यूट्रन वॉल, इस तरह की एडहेजन्स होती हैं। क्योंकि वो जो एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स होते हैं वो उस गट के मसल्स तक, बल्कि बाल दफा उसके म्यूकोसा तक चले जाते हैं। सो दैट इज सिंपल एडहेजन के उसमें फिब्रिनस एडहेजन्स होगी बिटवीन गट और वो, जिसको आप आराम से फ्लिम्जी वो उसके वो एडहेजन्स हैं जिनको आपने आराम से सीजर के साथ कट किया और उसके बाद आपने उसको सेपरेट कर लिया। एक्चुअली डेंस एडहेजन्स में वो जो एंडोमेट्रोसिस होता है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, और ये टू सो मच सो एक्सटेंड कि आप उस विसरा को डैमेज किए बगैर जा ही नहीं सकते, उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। मैम कोलोरेक्टल की हेल्प ले लेंगे फिर हम लोग। वो तो ले लेंगे, लेकिन इसमें फिर 2 स्टेप सर्जरी होती है। एक 2 स्टेप सर्जरी जो उन्होंने बताई कि हम इसमें से भी कम आउट ऑफ द सिचुएशन, और वो, लेकिन जो इसमें ज्यादा बेहतर चीज है बेसिकली एक ऐसे पेशेंट में जो नली पैरा हो,
ठीक है, क्योंकि मल्टी पैरा में या कंप्लीटेड सर्जरी उसमें तो हमें कुछ ऐसा मसला नहीं होता, वो हम कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरह। लेकिन सपोज यू हैव टू गो फॉर फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, in that case you have to take care of anatomical restoration as well as conservation of the ovarian reserve. वो दोनों चीजें फिर मैटर करती हैं। सपोज यही चीज एक 30-31 साल की औरत में हो जो who has been married for last 2 years and is having no issue, तो वहां पे आप ये करते हैं। अब इस पेशेंट ने ऑफ एंड ऑन OCPs लिए हुए हैं फॉर लास्ट 1 year. I don't think she has consistently taken OCPs for this whole time period. तो उसमें आप ये कर सकते हो, you just drain the endometriotic cyst. ड्रेनेज तो जाहिर है एक सबसे कम चीज है जो हम इसमें कर सकते हैं। तो ड्रेन करके you just come out of the situation, आपने उसको ड्रेन कर लिया। फिर आपने अब इसमें 2 स्टेप सर्जरी क्या होगी, आपने इसमें ड्रेन करके आपने उसको डबनॉन को क्लोज कर दिया, सर्जिकल प्रोसीजर आपने अबेंडन कर दिया, then you put her on the medical management, preferably in terms of GnRH analogs, या जो बाकी जो मेडिसिन हम दे सकते हैं इसमें OCPs की निस्बत ज्यादा बेहतर प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, Zoladex is GnRH analogs। तो प्रेफरेबली इधर प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर हम GnRH एनालॉग्स उसको दें मिनिमम फॉर 3 to 6 months, and then you plan for the next surgery. अब by that time the progression of the disease might have been arrested by this medical treatment. Medical treatment usually उसको abolish नहीं करती जो already बने हुए endometriotic spots हैं, लेकिन further progression रोक देती है। तो वो जो फर्दर प्रोग्रेशन का रुकना है, फिर आप उसमें ऑलरेडी जो आपने ओवरी को जो सारा एंडोमेट्रोमा को ड्रेन कर दिया और पेशेंट के जो है वो एमेनोरिया वाले फेज में चला गया, तो प्रोबेबली इट विल नॉट रिकर एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज इन एमेनोरिक फेज। तो इसलिए जो है वो उसमें जो हमारी सर्जिकल लिमिट है दैट विल बी अ बिट लिमिटेड, एंड इन दिस केस when there are dense adhesions, you will take help of the colorectal surgeon at that time period. और वहां पे फिर आपने इसमें बाज़ दफा ये भी होता है कि for time being when the patient is in excruciating pain and quality of life is so much disturbed, और उसमें fertility का भी है, तो anatomical restoration is the aim. The aim उसमें वो है, इसलिए आप इसमें सर्जिकल जो इसकी करेक्शन है वो आप कोशिश करोगे कि कंप्लीट हो जाए। इसमें फिर आप कोलोरेक्टल सर्जन जो है वो आपको डिसेक्शन में हेल्प करेगा। माइट बी सम पार्ट ऑफ द गट हैज टू बी रिमूव्ड, वो वाला पार्ट जिसमें एंडोमेट्रोसिस इनफिल्ट्रेट किया हुआ है वहां पे रिसेक्शन ऑफ द टिश्यू माइट बी नीडेड, ठीक है। तो वो वाला करके फिर आप उसके बाद जो ओवेरियन एंडोमेट्रोमा की जो सिस्ट वॉल है वो निकालनी जरूरी होती है, अदरवाइज तो रिकर कर जाएगा, क्योंकि सिस्ट वॉल में वो एंडोमेट्रोटिक ग्लैंड्स हैं जो कि बार बार ब्लीड करेंगे हर पीरियड्स में, हर साइकिल में, और इसके अलावा जो है वो फिर उसमें रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और रिकरेंस की वजह भी यही होती है व्हेन वी इनकम्प्लीटली रिमूव द एंडोमेट्रोमा की जो सिस्ट वॉल है उसको। तो एज मच एज वॉल विच कैन बी रिमूव्ड, और उसमें बार दफा ऐसा भी होता है कि फॉर द क्रॉनिक केसेस ऑफ एंडोमेट्रोमास उसमें कुछ वॉल तो निकल आती है, लेकिन कुछ जो है वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो जिस पार्ट को निकालना मुश्किल होता है आप वहां पे कॉटरी करके उनके टिश्यूज को बंद कर सकते हो। दो एब्लेशन इज नॉट एन आइडियल मेथड एज कंपेयर टू द रिसेक्शन और उसकी जो रिमूवल है ऑफ द एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स, बट वेयर यू कैन नॉट सेपरेट द टिश्यू वहां पे फिर एब्लेशन सिर्फ ओवेरियन में एंडोमेट्रोमा की बात कर रही हूँ, नॉट इन एनी अदर टिश्यू। लेकिन अगर पेरिटोनियल इम्प्लांट्स हों तो वहां पे भी आप वो आप कर सकते हैं। तो उस सूरत में फिर आपने, और उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जब आप बहुत बड़ा एंडोमेट्रोमा को जब आप कर रहे होते हैं, इवन इन केस जहां पे स्टेज 2 वाला केस हो, बहुत ज्यादा डीप इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, वहां पे भी जब आप बहुत बड़ा एंडोमेट्रोमा करते हैं और उस वक्त उसको निकालते हैं और बहुत सारी कॉटरी करते हैं तो ओवेरियन रिजर्व वहीं से नीचे चला जाता है। क्योंकि इवन जो एंडोमेट्रोमा या कोई भी और सिस्ट वॉल जब हम निकाल रहे होते हैं, देयर मे बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द फॉलिकल्स इन दैट सिस्ट वॉल जो उसके सराउंडिंग ओवेरियन स्ट्रक्चर्स में होते हैं और जो उसके साथ ही डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से जब एक
छोटी आप सिस्ट वॉल निकालोगे उसमें फॉलिकल डैमेज या उसका फॉलिकल जो रिजर्व है वो उसमें कम होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ओवेरियन डायथर्मी है, ओवेरियन कॉटराइजेशन है, मे बी फॉर एंडोमेट्रियोमा, मे बी फॉर एनी अदर रीजन, मे बी फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसको हमेशा मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉटरी करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल फॉलिकल्स आर डैमेज्ड एट दैट टाइम, डेफिनेटली वो वापस तो नहीं आ सकते। तो उससे ये ओवेरियन रिजर्व को कम होने की वजह ऐसी सर्जरीज में ओवर यूज ऑफ कॉटरी भी होता है, तो इसलिए उसको भी मिनिमाइज करना चाहिए। तो लेकिन इसको हमेशा 2 स्टेप सर्जरी पे ट्रेन किया, उसको एडजुवेंट थेरेपी दी in the form of GnRH analogs or progestins, अगरचे there are many more options but these two are most effective. डेनाजोल जो है, डेनाजोल के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन डेनाजोल अब बीएमडी को कम करता है, बीएमडी को कम करता है। तो डेनाजोल को अब एक फर्स्ट लाइन ऑप्शन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो पेसरी फॉर्म में या इम्प्लांट फॉर्म में अवेलेबल हो तो वो फिर हो सकता है, बाहर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बहरहाल उसको हम फर्स्ट लाइन ऑप्शन में नहीं लाते। अब एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होंगे इसके बहुत ज्यादा। कोई ना, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, लिवर पे भी उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। Yes, तो ये 2 चीजों के साथ करें 3 से 6 महीने तक, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, और उसके बाद सेकंड स्टेप सर्जरी पे जाएं, तो आपकी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी मिनिमाइज हो जाएगी। और मैम एरोमेटेज इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं इसको 1 महीने के लिए। हाँ, एरोमेटेज इनहिबिटर्स भी मैडम इसको दे सकते हैं 1 महीने के लिए। आप देखो जो एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ईदर प्रोजेस्ट्रोजेंस, विद ओसीपीज एंड Yes, विद ma'am. जीएनआरएच एनालॉग्स, Yes, और 1 महीने के लिए एरोमेटेज इनहिबिटर देने का ऐसा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता भी नहीं है। इसको मिनिमम 3 महीने के लिए दिया जाता है, बट इट कैन बी कंटिन्यूड इवन फॉर 3 to 6 months या इवन 9 months और इवन मोर। okay. और इसको जो हम जो ज्यादातर जो कंबाइन करते हैं, ज़ाहिर जीएनआरएच एनालॉग्स तो इतने अरसा नहीं हम यूज कर सकते, लेकिन इसमें हम ज्यादातर इसको प्रोजेस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, वरना एरोमेटेज का एक अपना एक्शन है। ओवुलेशन, ईस्ट्रोजन, वो सारा वो जो करना है, सुपर ओवुलेशन हो जाती है, उसमें एफएसएच लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो होगा ही होगा इफ यू विल नॉट कंबाइन इट विद एनी अदर मेडिसिन लाइक प्रोजेस्ट्रोजन। तो हमेशा इसको दिया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्ट्रोजन, ईदर Yes, ma'am. प्रोजेस्ट्रोजन टेबलेट 1 or twice a day with 1 tablet of letrozole। ठीक है। ठीक है, Madam, तो which ये- progestogens is used? जी? Which progestogens? नहीं, इसमें प्रोजेस्ट्रोजन की बात कर रहे हो? जी मैडम, कौन सी कोई भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, प्रेमलूटेन भी दे सकते हैं। प्राइमेलोटेन भी दे सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन की टेबलेट अवेलेबल है, वो हम दे सकते हैं। ज्यादातर प्राइमेलोटेन के साथ ही कंबाइन किया जाता है, दैट इज नॉरहेथिस्ट्रोन। Yes, ठीक है, नॉरहेथिंड्रोल एसीटेट भी हम यूज कर सकते हैं, डायनोजेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत सारी प्रेपरेशन है वो, लेकिन ज्यादातर प्राइमेलोटेन के साथ ही इसको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो फिर हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ने ऑलरेडी ये सारी ट्रीटमेंट ली हुई है मेडिकल मैनेजमेंट, तो फिर आप उसमें यू विल प्लान द सर्जरी, उसके पूरे फॉर्मेट के साथ आप जाएं, पूरे एसओपीज के साथ जाएं, कोलोरेक्टल सर्जन को साथ मिलाते हुए, इवन यूरोलॉजिस्ट को भी बाज दफा, कि अगर यूरेटर की, क्योंकि देखो जहां पे होता है ना फ्रोजन पेल्विस जो है वो, अब इस केस में तो हमें नहीं लगता कि यूट्रस इसमें मोबाइल थी, लेकिन वहां पे मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, और अगर एंडोमेट्रियोमा इज मोर देन ऑफ 16 जो है वो सेंटीमीटर का हो जाए, या बहुत ज्यादा ग्रॉस उस तरह से हो जो पेल्विक साइड वॉल्स तक भी जा रहे हैं, तो वहां पे यूरेटेरिक डैमेज का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और जिस तरह से मैंने बताया कि ये रेक्टम में या इंटेस्टाइन में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि डीप इन्फिल्ट्रेशन हम कहते ही तब है जब वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर में कम से कम 5 मिलीमीटर तक जा चुका हो, और मोर देन दैट, यानी पूरा पूरा उसकी वॉल का हिस्सा बन जाए, इस तरह से होता है। उसमें तो फिर हिमेटेमेसिस हो सकती है, हिमेटूरिया हो सकता है, और बाकी ब्लीडिंग थ्रू द रेक्टम, ये सब चीजें उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही होगी। तो उस सूरत में जहां पे एक फ्रोजन पेल्विस वाली चीज होती है, लिमिटेड मोबिलिटी है और बिग मैस है,
तो उस सूरत में हम हमेशा पहले प्री ऑपरेटिवली यूरेटेरिक स्टेंटिंग कर देते हैं, पेशेंट की सारी काउंसलिंग के साथ भी। और वहां पे यूरोलॉजिस्ट और हमारे पास कोलोरेक्टल सर्जन हमारे साथ होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हाई एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कोई इंजरी उस तरह से हो सकती है। पेशेंट को कॉस्टमी तक की जो है वो हम सारी ब्रीफिंग पहले से देंगे और उसको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इस पूरी प्रेपरेशन के साथ हमें जो है वो जाना चाहिए पेशेंट की सर्जरी करने से पहले, इन दैट केस, ठीक है। हाँ जी मैडम, इसमें एक स्टेप तो ये हो गया कि फर्स्ट जो हमने सर्जरी की उसमें हमने सारा ये कुछ देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे उसको प्रोजेस्टेरोन चलाएंगे फॉर अबाउट 3 मंथ्स। हमने ना सिर्फ देखा बल्कि उससे सिस्ट को ड्रेन भी किया, जो वक्ती तौर पे उसकी पेन, अगरचे पेन की वजह तो एडहेजन्स और ये सारा ग्रॉस एंडोमेट्रोसिस, और उसमें क्योंकि इसमें जनरलाइज्ड एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है पेरिटोनियल, जो फ्लूइड या पेरिटोनियल एनवायरनमेंट है वो सारा इन्फ्लेमेशन से भरा हुआ होता है, और इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स ऑलवेज कॉज पेन। ये आपको पता ही होगा कि इन्फ्लेमेशन जहां भी होती है वहां पे पेनफुल कंडीशन होती है। सो द रीजन फॉर पेन में नॉट ओनली बी एंडोमेट्रियोमा बट दिस ग्रॉस एडहेजन्स, और इसमें ग्रॉस इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन होती है वो भी सारी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ देख के बंद ही नहीं करेंगे, हम इसको ड्रेन करके बंद करेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, क्योंकि इसने अगर ये पहले मेडिसिन ले चुकी होती तो फिर हम वहीं पे देखते और वहीं पे उसको ट्रीट कर लेते। मैम उसे बोलते हैं कि पत्ते से पत्ता जोड़ के ले मैडम, मतलब कि उसको मेंसेस ना, मैडम वी से कि पत्ते से पत्ता जोड़ के ले लेना सीओसी पीस। हाँ, वो तो उसमें हमने ब्लीड फ्री उसको वो रखना है उसको इतने सारा अर्सा, क्योंकि देखो बेसिक पैथोलॉजी यही है उसकी प्रोग्रेशन की, कि जब भी मेंस्ट्रुअल ब्लीड थ्रू नॉर्मल एंडोमेट्रियम होता है वहीं पे मेंस्ट्रुअल ब्लीड थ्रू एब्डोमिनल एंडोमेट्रियम भी होता है। तो उसमें वो सारा जो है वो जो भी एक्टोपिक साइट्स हैं वहां पे वो उसका साइज बढ़ता जाएगा या उसकी प्रोग्रेसिवनेस बढ़ती जाएगी। तो हमने उस चीज से रोकना होता है ताकि वो एक्टोपिक साइट्स जो हैं वो मजीद साइज में ना बढ़े, उनकी ना सिर्फ ये कि साइज ना बढ़े बल्कि वो मजीद उनकी एट्रोफी शुरू हो जाए। अब जो एट्रोफी शुरू करने वाली चीज है, अब जहाँ पे हमने इतना मेलिग्नेंसीज में बात की इम्यूनोथेरेपी का, वहां पे अब ये बहुत सारी चीजें अंडर ट्रायल भी हैं कि वहां पे हम इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी कहीं रोल आ जाता है। अगर पेशेंट को फर्ज किया गया एंडोमेट्रियोमा ना हो लेकिन वैसी डिस्पेरूनिया हो और हम उसको जो है वो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस वही बनता हो, तो भी हम उसमें ज्यादातर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो चीजें कुछ जो रिसर्च में हैं, जो शायद कुछ अरसे बाद एक्चुअली प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स तो उनके हो ही रहे हैं, कि हर वो चीज जो इन्फ्लेमेशन की वजह है, यानी वो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो कि एंडोमेट्रोसिस में रिलीज होते हैं, उसमें ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स भी हैं, उसमें साइटोकाइन्स भी हैं, उसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मीडिएटेड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीजेस भी हैं, उसमें इंटरल्यूकिन 6 और 8 भी है। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। तो उसमें रिसर्च में ये है कि ये जो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं इनके अगेंस्ट हम चीजें बना दें, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी बना दें। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक तो हम पेन किलर तो ले ही रहे होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन वो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं हम एक्चुअली उनके एंटीडोट बना लें, यानी जो उसमें है वो एंटी साइटोकाइंस, एंटी इंटरल्यूकिन फैक्टर्स हैं, एंटी ग्रोथ फैक्टर यानी वो ग्रोथ फैक्टर जो कि उसको प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर, क्योंकि इनमें नई वेसल्स ग्रो कर रही होती हैं जो इन्फ्लेमेशन और जैसे इवन मेलिग्नेंसीज में भी। और इसी तरह से एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स भी, यानी वो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिन्होंने एंडोमेट्रोसिस में इन्फ्लेमेशन की और उसके बाद उसकी पेन की सबसे बड़ी वजह है, ये सारा मकसद पेन के साथ ही होता है, उसके अगेंस्ट एंटीडोट बना दें। तो वो जो चीज है वो बिल्कुल उसको टारगेट लेवल पे जो है वो टारगेट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी। तो ये हैं जो चीजें कुछ उसमें अब आजकल ट्रायल्स में हैं। तो उसमें इसके अलावा जो और बहुत सारी, बेसिकली जो सारा इसका मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर प्रोसेस को अरेस्ट करने के लिए जो है वो ये चीजें बनाई जाती हैं।
तो इसमें एक जो चीज और अब जो आजकल जो उसमें है वो है जो नई इनोवेटिव थेरेपी जो आजकल अगेन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में है, वो है डाइक्लोर एसीटेट। अब डाइक्लोर एसीटेट वो असल में मसला ये है एंडोमेट्रोसिस के साथ कि अगर इसमें हम पेन वो दें, मेडिकल मैनेजमेंट दें, तो फर्टिलिटी नहीं होती और सर्जिकल मॉर्बिडिटी अपनी काफी होती है। और फिर सर्जरी में ज़ाहिर है रिकरेंस अगर 30% है तो क्या हम बार बार सर्जरी करते रहें? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फर्टिलिटी अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वहां पे फिर हमारे पास ये मसला होता है कि हम इसको किस चीज से ट्रीट करें। तो ये जो डाइक्लोर एसीटेट वाली चीज है ये वो है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एंडोमेट्रोसिस की प्रोग्रेशन को रोकती है, रादर उसको अरेस्ट कर देती है। तो ये कुछ क्योंकि ये एंडोमेट्रोसिस इतनी बड़ी मॉर्बिडिटी है, यानी पेशेंट जो है इसका कोई टोटल क्योर तो अभी तक तो दरियाफ्त नहीं हुआ, जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स ही हैं। तो ये बेसिकली लैक्टेट लेवल को कम करता है। ये वाली ड्रग जो है ये नॉन हार्मोनल है, नॉन सर्जिकल है, यानी इसमें हमारी ये वाली चीज बाईपास हो जाएगी कि इसको देते देते भी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है। वरना हम अगर GnRH एनालॉग्स दें या OCPs दें या प्रोजेस्ट्रोजन दें तो वो सारा ओवेरियन सप्रेशन कर रहे हैं, और ज़ाहिर ओवेरियन सप्रेशन होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और एंडोमेट्रोसिस होगा तो उसके अपने प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, उसमें प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज अनदर बिग चैलेंज के एंडोमेट्रोसिस वाले पेशेंट में अगर कंसेप्शन हो जाए तो उसमें अपने बड़े इश्यूज होते हैं। तो ये वाली चीजें हैं जो कि जिसको हम दे सकते हैं एज अ एजेंट जो कि उसकी फर्दर प्रोग्रेशन को रादर उसकी एट्रोफी में हेल्प करता है। तो मे बी कि ये एक इनोवेटिव थेरेपी के तौर पे अगले कुछ टाइम पीरियड में ये आ जाए जब ये FDA अप्रूव हो। तो लैक्टेट लेवल जो हम बात कर रहे थे उसकी कि लैक्टेट लेवल को ये कम करेगा, और लैक्टेट लेवल वो है जो बहुत बड़ा मीडिएटर है फॉर द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रोटिक टिश्यूज। तो मैम फिर इसके प्रेगनेंसी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो? साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये हार्मोनल भी नहीं है और इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैम पेन के लिए जो OCPs देंगे तो हम पेशेंट को फिर कितने अर्से, जैसे ये पेशेंट है इसको फर्टिलिटी विशेष नहीं है, आफ्टर सर्जरी हम लोगों ने एब्लेशन कर ली या एंडोमेट्रोमा रिमूव कर लिया, वो सब हम लोगों ने इनको OCPs दिए फॉर पेन 3 मंथ्स कंसेक्टिव हमने दे दिया, तो मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए OCPs देगी? जैसे OCP स्टॉप करेगी फिर एंडोमेट्रोमा या रिकरेंस होगी? OCPs जो है वो कम से कम एट स्ट्रेच आप 3 years के लिए तो दे सकते हैं सेफली। देन यू हैव टू असेस द नीड, और उसमें उसके जो है वो बेसिकली मॉनिटरिंग होती है ना जब भी आप OCPs दे रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन थेरेपीज कैन बी प्रोलॉन्ग्ड। मैडम मायरीना भी डाल सकते हैं आगे जाके, मैडम मायरीना भी डाल सकते हैं अगर फर्टिलिटी इश्यू नहीं लोकल है। मायरीना इज अनदर, बल्कि आप ये जिडेल और ये इम्प्लानॉन भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जो लोकल प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं ओरल प्रोजेस्ट्रोजन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें फिर पेशेंट की कंप्लायंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप इसको ये जो है इम्प्लांट्स और मायरीना ये दोनों चीजें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब मैम एक जरा दोबारा बता दें, आपने 3 months का बताया और कंटिन्यूस बताया COCPs का? हाँ जी, इसमें कंटिन्यू देखो, जब भी हमने इसको अरेस्ट करना होता है ब्लीडिंग को तो हम इसमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं करवाते, तो कंटिन्यूसली लेना होता है पेशेंट ने, चाहे वो प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स हों, चाहे वो OCPs हों, और चाहे क्योंकि देखो OCPs कंटिन्यूस ले रही है लेकिन उसमें प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन दोनों हैं, तो एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन तो उसमें हो रही है। और लेकिन चूंकि उसमें एक ईस्ट्रोजन भी है और ईस्ट्रोजन इज अ बिग ट्रिगर फॉर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स, यही वजह है कि OCPs की निस्बत प्रोजेस्ट्रोजन एक बेहतर ऑप्शन समझे जाते हैं। या फिर आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर अलोंग विद द प्रोजेस्ट्रोजन, वो भी आप सेफली काफी लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं। मतलब ज्यादातर तो हम थेरेपी 6 months के लिए देते हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं और डिफरेंट उसमें रिजीम्स हम चेंज कर भी सकते हैं। मैम अगर एक्सपेक्ट 3 years देंगे तो कंसेक्टिव मतलब देंगे, उनमें ब्लीड फ्री नहीं होगा, वो ब्लीड फ्री देंगे 3 years के लिए? आप ब्लीड फ्री ही देखो इसमें थेरेपी जब भी हम मेडिकल थेरेपी देते हैं तो वो ब्लीड फ्री होनी चाहिए। विड्रॉल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि जो एक टॉपिक एंडोमेट्रियम है वो तो वही मैकेनिज्म तो वो हो गया जैसे एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में है। जी मैम। देखो ओवेरियन सप्रेशन आपने की, लेकिन ओवेरियन सप्रेशन के साथ सिर्फ फॉलिकल नहीं बना, फॉलिकल नहीं बना तो एंडोजिनस ईस्ट्रोजन नहीं बनी,
लेकिन आप ईस्ट्रोजन बाहर से दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ओसीपीज, और ओसीपीज फिर आप अगर देंगे वो उसका साइकिल सिमुलेट करेगा विद एन ओवेरियन साइकिल, और पेशेंट जब ब्लीड करेगा एंडोमेट्रियम उसकी जहां जहां है वो हर जगह से ब्लीड करेगा, और इसमें एंडोमेट्रियोमा दोबारा से इसीलिए जो भी पेशेंट ओसीपीज या लो डोज प्रोजेस्ट्रोजेंस पे होते हैं, अगर वो ये कहें कि इनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अगर हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मेंस्ट्रुअल लाइक ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो इसका मतलब है कि हमारी फिर थेरेपी इफेक्टिव नहीं हो। तो उसमें फिर हमें इधर वी हैव टू चेंज द रिजीम, या फिर हमें उसमें उसकी डोज, अगर हम प्रोजेस्ट्रोजन ही दे रहे हैं तो उसकी डोज को बढ़ाना पड़ता है। ओके मैम, और अगर एक नली पेरिस पेशेंट है, फ्रोजन पेल्विस है, उनका फर्टिलिटी विशेस है, तो मैम उस केस में उनका क्या करेंगे? उसको भी पहले हम 3 to 6 months मेडिकल थेरेपी देंगे? उसमें थोड़ा सा उसका जो एक्सटेंट ऑफ डिजीज है उसकी प्रोग्रेशन को हमें रोकना पड़ेगा, ईदर बाय नो एडजुवेंट थेरेपी और बाय एडजुवेंट थेरेपी, यानी प्री ऑपरेटिवली या पोस्ट ऑपरेटिवली, ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स भी करेंगे? हाँ, वो भी करेंगे, और उसमें ये है कि इसमें प्री ऑपरेटिवली देने का एक फायदा ये होगा कि कम से कम 1 स्टेप सर्जरी आप कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि पेशेंट आपके पास आया होता है विद एक्यूट पेन, और उसमें पेशेंट ने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं ली होती, कोई इवैल्यूएशन भी नहीं होती, तो वहां पे 2 स्टेप सर्जरी वाला कंसेप्ट आ जाता है, वरना ऐसे पेशेंट में बार बार सर्जरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें 1 स्टेप सर्जरी करने में उसमें हमेशा ये बेहतर होता है कि आप पहले उसको, जो ज्यादातर हम करते भी हैं ऐसे पेशेंट्स में, कि 3 कोर्सेज GnRH एनालॉग्स के दे दिए जो पेशेंट अफोर्डिंग है उनमें, अगर नहीं है तो फिर उसमें हाई डोज प्रोजेस्ट्रोजेंस दे दी फॉर 3 मंथ, और उसके बाद आप सर्जरी को प्रोसीड करें विद ऑल इट्स SOPs। मैम यहाँ पे हम फिर किसी हद तक उसमें फर्टिलिटी जो प्रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं, और कोलोरेक्टल सर्जन जो है वो बाज़ दफा रेक्टम को खोले बगैर भी उसका जो सारा वॉल इन्वॉल्व है वो उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टल वॉल खुली तो उसका सीधा सीधा मतलब है सिग्मोइड या रेक्टल वॉल की कोलोस्टमी बनेगी ही बनेगी, इंटरवल कोलोस्टमी जो होती है कम से कम 3 महीने के लिए। मैम फिर इसके बाद हम इस पेशेंट को ज़रा IVF के लिए करेंगे ना, स्टेज 4 उसके एंडोमेट्रियोसिस है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो उसके बाद हम IVF के लिए रेफर। उसमें फिर ART वाली ऑप्शन जो है वो ज्यादा फिजिबल रहती है, लेकिन अगर मॉडरेट स्टेज 1-2 हो तो उसमें आफ्टर डूइंग सर्जरी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का ट्राई दिया जा सकता है। और मैम इनमें हम फिर सेल्फ इंजेक्ट में करेंगे पेशेंट की? मैम मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोगों ने वो डिपेंड, देखो अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि इसमें हमने ART के साथ ही करना है, लाइक इन स्टेज 4 इफ शी इज अ केस ऑफ फ्रोजन पेल्विस, तो वहां पे फिर बेहतर होता है खास तौर पे अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, क्योंकि हाइड्रोसेल्पिंग्स हो या डिजीज ट्यूब है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है अंदर, तो उसको हमें क्लिपिंग करनी पड़ती है या ट्यूब को निकालना पड़ता है बिफोर वी गो फॉर IVF और ICSI। मैम अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स ना हो फिर नहीं करेंगे रिमूव हाइड्रोसेल्पिंग्स? अगर क्योंकि ज्यादातर इसमें ट्यूबल ब्लॉकेज से ज्यादा इसमें जो मसला होता है ना उसके इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स का होता है, और उसकी एक्स्ट्रा पेल्विक पैथोलॉजी यानी जो एडहेजन्स ट्यूब्स के बाहर बाहर है उसमें एंडोसेल्पिंग्स में इतना मसला नहीं होता, लेकिन एक ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी मिलियो ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड, और उसमें जो एक्स्ट्रा जो फिलोपियन ट्यूब के जो बाहर सारी एडहेजन्स है, पेल्विक एडहेजन्स है, वो ट्यूबल मोटिलिटी को भी इफेक्ट करती हैं। सो इन दैट वे जो है वो ट्यूबल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। अदरवाइज फर्टिलिटी इज बेसिकली अफेक्टेड एट ऑल लेवल्स। यानी हम तो वैसे भी ART की तरफ जा रहे हैं ना, अब अगर हमारे पास हाइड्रोसेल्पिंग्स नहीं है, ट्यूब्स नॉर्मल तो नहीं लेकिन एडिशंस वगैरह होंगी, तो फिर भी उस केस में भी हम ट्यूब्स को रिमूव करेंगे, या हाइड्रोसेल्पिंग्स नहीं है, हमें डायलेटेड ट्यूब्स नहीं है? उसमें आपने पहले से चीजों को प्लान किया होगा, क्योंकि IVF ICSI की जो फैसिलिटी है वो ज्यादातर पब्लिक सेटअप्स में अवेलेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल किसी पब्लिक सेटअप में अवेलेबल है, ये ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही अवेलेबल है, और इसकी डेफिनेटली एक कॉस्ट है, जो उसकी प्रोसीजर कॉस्ट है वो तो है ही है। अब पेशेंट की जो उसकी अफोर्डेबिलिटी वो डेफिनेटली आपको यू हैव टू टेक इन इनटू अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मरीज की फर्ज किया ट्यूबें निकाल दें और उसको कहें कि अब IVF ICSI ही करवाना है, वी कैन नॉट ऑर्डर लाइक दैट। हमें पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक उसकी डिजीज, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको टेलर करना होता है।
तो ऐसे पेशेंट में जिसमें ये चांसेस नहीं है कि वो बिल्कुल भी अफोर्ड कर सकती है फॉर IVF इक्सी, जिसका अपना सक्सेस रेट इसमें थोड़ा मिनिमाइज और मजीद हो जाएगा विद होल सिचुएशन, तो वहां पे अगर आप उसकी सल्पिंगेक्टमी भी कर दें तो शी इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। इसलिए उसमें ये सारी चीजों को आप देखते हुए फिर आप डिसाइड करेंगे फ्रॉम केस टू केस। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो ART विल बी द आइडियल ऑप्शन फॉर हर, लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकता, इवन इन स्टेज 3 and 4 यू हैव टू प्रिजर्व द ट्यूब्स इफ नॉट बैडली डैमेज्ड। ओके मैम, उसमें फिर Thank आपने you, ma'am. उसको इंडिविजुअलाइज करना होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि अगर आपने मारीना रख दिया पेशेंट को और पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर्स हैं, तो हम उसको कितने अरसे के बाद एडवाइस करेंगे कि वो कंसीव करे? अगर देखो पेशेंट हमसे मायरीना, पूछ ले। अगर तो देखो अब मायरीना सिर्फ उन्हीं में रखी जाती है जिनमें हमने यूट्रस को प्रिजर्व किया हुआ है। जैसे यंग एज में हम अभी उसकी हिस्टेक्टमी नहीं कर रहे, उसकी अभी हम ओफरेक्टमी नहीं कर रहे, और अगर जो खाली हिस्टेक्टमी भी हम कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर एंडोमेट्रोटिक सर्जरी। लेकिन ये है कि इसमें जो एक ऐसा पेशेंट जिसमें फर्टिलिटी एक रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें शॉर्ट टर्म थेरेपी देनी है फॉर 3 to 6 months, देन व्हाई यू विल इंसर्ट मायरीना इन दैट पेशेंट। मायरीना इंसर्शन उनमें होगी जिसमें हम लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में जिसमें हमें एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट चाहिए बाय मेडिकल मैनेजमेंट, वहां पे हम ओरल थेरेपी के साथ उसको मैनेज करेंगे, नॉट विद मायरीना। अगेन द डिसीजन इज केस टू केस, यानी वो बेस करेगा ऑन दैट इंडिविजुअल सिनेरियो ऑफ द पेशेंट। मैम अगर हमने उसको ओरल हाँ पे भी अगर उसको हमने डाल दिया है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल मारीना नहीं रखी, तो ओरल के बाद भी हम उसको कब एडवाइस करेंगे कि आप कब कम अज कम कंसीव उसको कर रही? देखो, कम अज कम थेरेपी 3 months के लिए होती है एंड इट कैन गो अप टिल 6 months, तब ही कहीं जाके रिग्रेशन या उसकी होती है। 1-2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम अज कम आपको 3 महीने, 3 से 6 महीने का एक एवरेज टाइम पीरियड होता है। तो उसके बाद फिर आप उसमें ओवुलेशन इंडक्शन भी इवन कर सकते हो। सही। मैम अगर जोलाडेक्स पे पेशेंट को इनिशियली स्पॉटिंग हो तो उसको जस्ट रीअश्योर करना है, जैसे जोलाडेक्स का इफेक्ट होने में तो स्टार्ट होने में मतलब 1 वीक तक लग सकता है ना मैम। अगर पेशेंट को जोलाडेक्स की इंजेक्शन लगी है तो और उसको स्पॉटिंग हुई है ना, फॉलोड बाय स्पॉटिंग, तो उसको जस्ट रीअश्योर कर देंगे। हाँ, बस सिर्फ रीअश्योर करें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी ये मैम। बेसिकली थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है विथड्रॉल प्लीज। ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी मैम इज इट पॉसिबल कि जो है 13 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर एडिशंस ना हो? बहुत कम चांसेस है। जो इतनी बड़ी एडिशन बन गई, देखो उसमें ज़ाहिर एंडोमेट्रोसिस उस एक्सटेंट का है, तो अमूमन उसमें एडिशन जरूर होती हैं, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन एडिशन जरूर होती हैं। ऐसा मैम, हमने और बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग एंडोमेट्रोटिक सिस्ट कभी कम ही देखी है। और मैम जो है CA-125 में भी रेज हो सकती है ऐसे केसेस में? ऐसा एक पेशेंट मैंने देखा है। अमूमन थाउजेंड्स में नहीं रेस होती, थाउजेंड्स में नहीं मैम रेस उसकी होती, हिस्टोपैथ भी एंडोमेट्रोमा ही आई है। हाँ जी, मैम उसकी हिस्टोपैथ भी एंडोमेट्रोमा ही आई है उसकी लेकिन अगर किसी पेशेंट का CA-125 बहुत रेस्ड है और एंडोमेट्रोटिक सिस्ट आई है, रीचेक द हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि कभी कभी ओवेरियन मैलिग्नेंसी के चांसेस इन प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रोटिक सिस्ट भी बढ़ जाते हैं। सो देयर मे बी सम कोएग्जिस्टेंट ओवेरियन मैलिग्नेंसी व्हिच हैज नॉट बीन डिटेक्टेड इन द सेक्शंस। ठीक है, उसके फिर दोबारा से जो है वो बायोप्सी जरूर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थाउजेंड्स में होता नहीं है CA-125। हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ये जो पेशेंट अभी डिस्कस हुआ है 32 इयर्स ऑफ एज, पैरा 3 फैमिली कंप्लीट है, इस पेशेंट में क्या हम डेफिनेटिव सर्जरी का भी ऑप्शन दे सकते हैं विद प्रॉपर काउंसलिंग अगर पेशेंट एग्री करे तो? नंबर 1। नंबर 2 मैम, आपने शुरू में सिस्ट वॉल थिकनेस का जिक्र किया था, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली जब हमने इसको एंडोमेट्रोटिक सिस्ट को किसी दूसरी बिनाइन या मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट से डिफरेंशिएट करना हो, तो क्योंकि वो डिफरेंशियल में है, तो सिस्ट वॉल थिकनेस जो बिल्कुल सिंपल क्लियर सीरियस सिस्ट होती हैं, उनमें सिस्ट वॉल इज ऑलवेज लेस देन 2 millimeters। उसके सेप्टस की थिकनेस होती है, उसकी सिस्ट वॉल थिकनेस होती है, तो ये एक पैरामीटर होता है टू रूल आउट द टाइप ऑफ सिस्ट एज ऑन अल्ट्रासाउंड।
तो ये सिर्फ उसका एक पैरामीटर है। अदरवाइज जहां पे एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट की सिस्ट वॉल थिकनेस हमेशा ज्यादा होती है और ये मल्टी सेप्टेट होती है और इसमें जाहिर है थिक फ्लूइड होता है। तो इसमें इसकी एक्ोजेनिसिटी जो है वो भी अमूमन ये आई थिंक हाइपर एक्विक होती है। अल्ट्रासाउंड का पैरामीटर मेरा ख्याल है ये होगा, ये कंफर्म कर लेना कि इसकी जो एक्ोजेनिसिटी है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द सिंपल सिस्ट। ठीक है, इसलिए सिंपल सिस्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड फ्रॉम द एंडोमेट्रोटिक सिस्ट और हमें पता चल जाता है कि ये एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, इस पेशेंट में हम डेफिनेटिव सर्जरी का ऑप्शन दे सकते थे इस पेशेंट को जब फैमिली कंप्लीट है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेटिव सर्जरी? मैम THBSO। THBSO, लेकिन उस सूरत में फिर आप उसमें रिस्क क्या है? TAH प्लस BSO कैन बी, लेकिन उसके बाद फिर पेशेंट को रहना पड़ेगा ऑन HRT टिल नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा मैडम? हाँ, वो डेफिनेटली सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा और इसमें फिर हमें, लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन द केस। अगर इतना स्वेयर केस है और पेशेंट इज क्वाइट डिबिलिटेटेड और विद द पेन एंड अदर थिंग्स, और उसके अलावा उसका फ्रोजन पेल्विस निकल आता है जिसमें आपको लगता है कि अगर ये इस दफा हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्जरी होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्जरीज फॉर फर्टिलिटी रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, जहाँ पे फर्टिलिटी डिजायर होती है वहां पे है रेस्टोरेशन ऑफ एनाटमी एज वेल एज जो उसके सिम्टम्स और जो को एलिविएट करना, वो सारा कुछ जो कि एंडोमेट्रोटिक की सर्जरी के साथ भी वो होगा। सो बट व्हाट इफ इट रिकर्स एंड व्हाट इफ द एडहेजन्स जो है वो सारा यही फ्रोजन पेल्विस की कंडीशन दोबारा हो जाए। और जो प्रैक्टिकली ये सर्जरीज कर रही होती हैं उनको पता है कि एक दफा इस तरह का फ्रोजन पेल्विस खोलो तो दूसरी दफा खोलने से पहले आप 100 दफा सोचते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी इज सो मच इंक्रीज्ड, जो उसके रिस्क ऑफ इंजरी टू द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स इज सो मच इंक्रीज्ड। पेशेंट की मॉर्बिडिटी आप और बढ़ा रहे होते हैं रादर। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में बेहतर होता है कि आप उसको एक फाइनल सर्जरी की तरफ ले जाएं। लेकिन ये वो सारी चीजें जो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन की होंगी पहले, कि इसमें अगर ये वाली सिचुएशन निकली तो उसमें ज्यादा बेहतर सोल्यूशन ये होगा कि एज योर फैमिली हैज बीन कंप्लीटेड एंड बाय डूइंग कंजर्वेटिव सर्जरी देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस। और रिकरेंस की सूरत में अगर ऐसा फ्रोजन पेल्विस हमने इस दफा खोला और इस तरह के वो सारा जाहिर वो सर्जन्स को मिला के और सारा कुछ किया आपने, तो दोबारा ये खोलना शायद एक बहुत ही मुश्किल चीज होगी। और उसमें देयर आर व्हाट आर द चैलेंजेस, उसमें रिस्क क्या है सर्जरी के। फिर उसके बाद आप उसको ये भी बताओगे कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ डूइंग दिस, जो फाइनल इसकी सर्जरी है वो रेडिकल सर्जरी, उसके क्या रिस्क हैं, और इसमें व्हाट आर द नीड्स देयर आफ्टर, कि इसमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर यूजिंग HRT टिल हर नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज यानी 45 ईयर्स तक। So she has to be on HRT for at least 13 to 14 years more. तो ये वाली चीज है जो आपने उसको बतानी है। थैंक यू मैम। मैम एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैडम, अगर एक पेशेंट 25 ईयर की यंग पेशेंट है, 4 ईयर से मैरिड है और शी वांट टू कंसीव, स्कैन पे उसका 3.9 into 3 सेंटीमीटर बायलेक्युलर एंडोमेट्रियोमा है, तो क्या हम इसको लेप्रोस्कोपी के लिए मींस रेडी करना चाहिए सो दैट कि हमें पता चल जाए कि अंदर पेल्विस के अंदर और भी कोई इम्प्लांट्स या डिजीज की सेवेरिटी कितनी है, या इसको डायरेक्ट वे हमने ट्रीटमेंट दे देनी है ओव्यूलेशन इंडक्शन? नहीं, देखो ओव्यूलेशन इंडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा और सिम्प्टोमेटिक भी यकीनन होगी। तो मैडम बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा नहीं है, सिर्फ 3.9 into 3 सेंटीमीटर पे बायलोक्यूलर एंडोमेट्रियोमा इन वन ओवरी है। ओके, तो इसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन द प्रॉब्लम विद मेडिकल ट्रीटमेंट अगेन इज के आप जितना अरसा मेडिकल ट्रीटमेंट करोगे और इतने को रिजॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने थेरेपी देनी है। सो दिस विल डिले द फर्टिलिटी फर्दर। लेकिन इसके साथ साथ आप सिर्फ इस एक एंडोमेट्रियोमा को ही वजह नहीं समझोगे फॉर इनफर्टिलिटी, रादर यू विल इवैल्यूएट फॉर द अदर रीजंस एज वेल, जो एक रूटीन मैडम बाकी सारे काजेस एक्सक्लूड हो गए हैं, HSG एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, अगर मैडम तो बाकी इवैल्यूएशन हो गई है, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके,
अब इसमें दो चीजें हैं, either you use the therapy for 3 months and then you go for the ovulation induction. If it fails, then it is better to go for the laparoscopy to treat that endometrioma and to have a look on the other pelvic structures. के बाद दफा जो small peritoneal deposits होते हैं वो भी एक वजह बन सकते हैं for the delayed fertility in such cases, and that will be treated side by side at the time of laparoscopy. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि आप पहले 3 महीने की थेरेपी दे दो, जहाँ पे 4 साल गुजर गए, वहां 3 महीने की थेरेपी से डिले तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे अगर आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आया, फेल्ड ट्रीटमेंट वैसे हम तब कहते हैं जब 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद भी फर्क ना पड़े सिम्टम्स में या एंडोमेट्रोटिक जो लीजन इस तरह की जो है उसके साइज में कम होने में, तो उस सूरत में फिर आप डायरेक्टली लेप्रोस्कोपी की तरफ चले जाते हो. सो दिस वुड बी अ बेटर एक्सेप्टेबल ऑप्शन कि 3 महीने आप मेडिसिन, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन की इसका है साइज है, तो 3 महीने देके उसका रिस्पॉन्स देखो, नहीं है लेप्रोस्कोपी पे जाओ, लेप्रोस्कोपी पे जो है वो आप सारी चीजें फिर सॉर्ट आउट कर लें, ट्रीटमेंट एज वेल एज डायग्नोसिस फॉर द अदर एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स, और उनको भी ट्रीट फिर साइड बाय साइड आप उस वक्त कर लो. मैडम ट्यूबल पेटेंसी के लिए फिर हम इंट्राऑपरेटिव वो तो उसी वक्त फिर हो जाएगा. ठीक है. उसके लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं. एट द सेम टाइम कोशिश करनी चाहिए कि एक ही प्रोसीजर में सारे काम हो जाए. ठीक है, चले, और कोई क्वेश्चन तो नहीं? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ब्रीफ थैंक यू मैम. थैंक यू मैडम. अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैडम बायलेटरल इंडोमेट्रियोमा में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं? बायलेटरल इंडोमेट्रियोमा अगर पेशेंट यंग पेशेंट प्रेजेंट करे इसी तो तरह का साइज है 3 to 3.5 सेंटीमीटर का है, बायलैटरल है, तो उसमें भी ऐसे आप कर सकते हो. ठीक है, अब बायलैटरल में थोड़ा सा डिलेड फर्टिलिटी होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ का जो क्योंकि जब एंडोमेट्रोसिस होता है ओवरी में, एंडोमेट्रोमास होता है, तो डेफिनेटली फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी, ओवम का पिकअप होना, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलिटी इज अफेक्टेड एट ऑल लेवल्स. तो इस वजह से फॉर फर्टिलिटी पर्पजेस मेडिकल मैनेजमेंट की सेकंड चॉइस होती है और सर्जिकल मैनेजमेंट की पहली चॉइस होती है. फॉर पेन जो है वो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट पहले आती है और सर्जिकल मैनेजमेंट बाद में आती है. अलबत्ता अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए 6 महीने के बाद, तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, इवन फॉर द पेन. ठीक है. मैडम एक बात ये बताइएगा कि अगर जैसे यह स्कैन पे फाइंडिंग है एंडोमेट्रियोमा नहीं है, वो ऐसे लिख देते हैं हेमरेजिक सिस्ट दैट मे बी एंडोमेट्रियोमा, उस वक्त हम उसको फिर फॉलो करो, जो हेमरेजिक सिस्ट है वो खुद ही गायब हो जाएगी 1-2 साइकिल के बाद. और अगर वो एंडोमेट्रियोमा होगा तो परसिस्ट करेगा, है तो वो बढ़ जाएगा. ठीक है. अच्छा, हाँ जी मैम, जब हम इसको एस्पायरेशन करेंगे इसकी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट की, तो उसमें कोई प्रीरिक्विजिट होंगी मैडम? क्या होगा? सिस्ट को जब हम एस्पायर करेंगे, एस्पिरेट करेंगे, जब एस्पिरेट करेंगे, यस, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ जो है प्रीरिक्विजिट करनी पड़ेंगी उसके लिए, क्योंकि वो जो उसको तो सिंपल एस्पिरेट ही हमने करना है. बस सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि उसके सारे लोकुलाई बीच में ब्रेक होके तो वो सारी सिस्ट वॉल सिस्ट जो है वो ड्रेन हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है वो भी मुझे बता दो. पीसीओ मेरा ख्याल है आप लोगों ने कहा था शायद पिछली दफा. यस मैम, पीसीओ कर लेते हैं. पीसीओ कर लेते हैं. हाँ, क्योंकि वो भी जरा एक चैलेंजिंग कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे मतलब डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट. जी मैम. ठीक है. थैंक यू मैम. अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी मैं देख रही हूँ वो है CA 1 to 5 का रोल. CA 1 to 5 का रोल जो इसमें है वो बॉर्डर लाइन रेस तो हो जाता है, बट इट इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ एंडोमेट्रोसिस. तो रूटीन में हम जब तक हमने इसको लेकिन अब जैसे हमने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई है और इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट के तौर पे पता चलता है इस पेशेंट का कि ये 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर से ऊपर की कॉम्प्लेक्स सिस्ट है,
तो उस सूरत में हम अपनी रूटीन के उसमें करवा रहे होते हैं। या बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि जब भी मैं बात बता रही थी कि एंडोमेट्रोटिक सिस्ट जब मौजूद होती है ओवरी में, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा स्लाइटली रिस्क ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड, लेकिन वो एक थोड़ी सी जरा रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट CA125 ड्यू टू इट्स एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन, उसमें CA125 एंडोमेट्रोसिस में बढ़ जाता है, लेकिन ये इतना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता कि जिसमें हम कहें कि ये मैलिग्नेंसी वाली रेंज में आ जाए। अगर ये मैलिग्नेंसी वाली रेंज में आ जाए, विच डेफिनेटली इज अबाउट 250, तो उस सूरत में हमें फिर वी हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर विजिलेंट अबाउट रूलिंग आउट द ओवेरियन मैलिग्नेंसीज। तो सीरम LDH भी बढ़ता है क्या इसमें? जो मैंने केस बताया उसमें सीरम LDH भी रेज्ड देखो, था। ये जो है ना LDH, अल्फा फीटोप्रोटीन्स, बीटा ICG, ये डिफरेंट तरह के उसमें जो है वो ओवेरियन ट्यूमर्स में भर रहे होते हैं, पर मार्कर अलग। इसका LDH के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मैम इस केस में LDH भी रेज्ड था, इसलिए क्वेश्चन रेज किया मैंने। तो फिर तो और ज्यादा जरूरी है कि उसमें मैलिग्नेंसी रूल आउट करो। लेकिन मैम आगा खान की हिस्टोपैथ में एंडोमेट्रोसिस आया था। हाँ, लेकिन हम एंडोमेट्रोमा आया दोबारा था। रीड करें, क्योंकि ये उसके प्रोफाइल के मुताबिक नहीं जा रहा। CA125 इतना रेस्ट और जो है मैम 1300 था, मतलब एक तरह से 1000 में था। तो इसको जरूर रीड करवा लो। जी मैम एक और केस। हाँ जी मैम सिस्ट की वजह से जो है वो पेशेंट ऑपरेट हुई, और वो सिस्ट जो है ना उसमें लिखा आगा खान की हिस्टोपैथ में ये आया कि ये जो है सेकेंडरी ट्यूमर है, सेकेंडरी ओवेरियन ट्यूमर है, तो इसको जो है प्राइमरी कॉज के लिए आप रूल आउट करें। पेशेंट की एंडोस्कोपिक बायोप्सी हुई है। ऐसा तो नहीं था कि जिसको आपने नहीं, एंडोमेट्रोसिस तो था, लेकिन अगर सेकेंडरी नहीं, ये ट्यूमर है दूसरा केस है मैम। अच्छा ठीक है जी मैम इसमें ओवेरियन सिस्ट के लिए पेशेंट ऑपरेट हुई और उसकी हिस्टोपैथ में ये आया कि सेकेंडरी ओवेरियन ओरिजिन है, आप जो है प्राइमरी काज के लिए रूल आउट करें पेशेंट को। फिर पेशेंट की जो है एंडोस्कोपिक बायोप्सी हुई स्टमक की, उसमें आया है कि उसको स्टमक सेल कार्सिनोमा है स्टमक का। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स होते हैं या ये जो होते हैं ना मतलब सिग्नेट सेल क्रूकनबर्ग ही आया था मैम। हाँ, तो उसमें ये हमेशा सेकेंडरीज ओवरीज में आती हैं, और पांच दफा ओवेरियन ट्यूमर को ही हम प्राइमरी समझ के तो उसको वो कर रहे होते हैं। जी मैम, लेकिन इस केस में जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ओवेरियन सिस्ट निकाली गई थी, वो बिल्कुल एक मतलब अलग से सिस्ट थी और ना कोई एडिशंस दूसरी उसको ओवरीज से बिल्कुल सेपरेट। क्योंकि देखो ये प्राइमरी ओवेरियन नहीं थी ना, प्राइमरी ओवेरियन की पैथोलॉजी उस मतलब जो भी जिस भी स्ट्रक्चर की प्राइमरी होती है उसमें उसके लिम्फेटिक्स उसके, ये तो ब्लड स्प्रेड हुआ ना, इसका लिम्फेटिक्स उसके साथ नहीं हुआ, ये हेमाटोजेनिक स्प्रेड से सेकेंडरी ओवेरियन बनता है। तो इस वजह से जहाँ पे लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व, ये जहाँ पे एडजेसेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, वहाँ पे एडिशंस होती हैं, वहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ये प्राइमरी ओवेरियन हो तो प्राइमरी ओवेरियन में हमेशा जो इर्द गिर्द का मोमेंटम है वो हमेशा पहले इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इंटेस्टाइन गट, और इसीलिए इसमें इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी बहुत मार्क्ड होते हैं जो प्राइमरी ओवेरियन पैथोलॉजीज। तो मैम मेरी जो कलीग थी जिन्होंने मुझसे ये केस डिस्कस किया, कल रात को ही मुझे उन्होंने स्टमक की वो बायोप्सी भेजी थी, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि ओवेरियन जो सिस्ट था वो इतना आइसोलेटेड क्यों था। तो मेरा ये आंसर बना कि ये जो है लिम्फेटिक और ब्लड से आया है, अगर यहाँ पे प्राइमरी होती तो ये जो इन्वेड करती है, जैसे कैंसर के स्प्रेड के 3-4 तरीके होते हैं, जैसे स्प्रेड हो गया, वो वाले नहीं थे, ये हेमाटोजेनिक स्प्रेड था, ब्लड वेसल से आया और उसने वो सिस्ट कर दी। जी, तो वो आकर जस्ट उसी जगह पे लोकलाइज हो गई, दूसरी जगह पे या इन्वेड नहीं हुई। ठीक है ठीक है, चलें जी, थैंक यू मैम। अब खत्म करें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।